ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਲਾ ਕੇ ਰਹੀਮੀਆ ਖਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾਣ ਆਏ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਛੁਡਾਣੇ ਆਏ थे तो उन्होंने छीन लिया सी, फिर ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਗੋਗੀ ਬੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨੇ ਨਾ। ਗੋਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਗਏ ਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੋਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤੀ ਖਿੱਚੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਾਇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ। ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਲੋਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਛਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ CCD ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਦਜਾਲ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਨਾਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ, ਇਸਨੇ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਲੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਆਖੇ। ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਲਵੋ, ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਖੀ ਵੜ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਲਾਣਾ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰਾ ਜਿਮ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਤਰੋਲ ਉਹਦੀ ਕਰ ਸੜੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਹਾਣ ਦੇ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਮੀਰ ਲਤੀਫ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਟਿਲ देयर इज नीड टू डू मोर। 100% ਇਹ ਡੂ ਮੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸਵਾਦ ਤਾਮ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੀਕਦੇ ਪਿਉਣ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਸਨ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗਿਆ ਖੋਤੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਸ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡੋ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਖੁਦ ਕਸ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਾਓ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਯਾਹਿਆ ਬਖਤਿਆਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਹਿਆ ਬਖਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਉਹ ਮੁਸਤਨਦ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੀ ਹਰਫੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਹਲੀਅਤ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੇਹਯਾਈ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਜੈਲੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਿਆਵਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਹੈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਵਹਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੁਣ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਿਆਨ ਅਲਫੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ।
ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਬੇਗੈਰਤੀ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਹਲੀਅਤ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਹਲਫ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਫਲਾਂਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਹਲਫ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਹਲਫ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਝੂਠੇ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲਫ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਹਲਫ ਦੇਂਗਾ, ਤੂੰ 101 ਹਲਫ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਝੂਠੇ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਮੁਲਹਿਦ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਲਫ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੰਜ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਫ ਇੰਜ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਫ ਮਾਰੇ ਸਾਕੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਜੇ ਸਾਕੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਫ ਹੈ ਕੋਈ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਹਲਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਫਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। 1907 ਚ ਵਾਕਿਆ, ਮਾਰਚ 1907 ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਅਲ ਹਕਮ ਖੋਲ ਕੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਹਲਫ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਹਾਮ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਲਫ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਹਾਮ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹਲਫ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਹਲਫ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਲਫ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ जनाब? बस ठीक ठाक। मैं आज और कल गायब था तो मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਸ? मेरी बरात से की होया? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦ ਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अच्छा, दोनों ही हो गई हैं, वॉइड ਇੱਕ हो ਵਾਰੀ गया। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਇੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਲੋਜ਼। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਈ ਕਲੋਜ਼, ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਏ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ये किसने एक सेकंड, मुझे उस वक्त ओपन क्या नाम था उसका? काइंड हार्टेड मौजूद था उस वक्त? मैं भी था शायद। मैं ਇੱਕ ਕਾइंड ਹਾਰਟਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਾइंड ਹਾਰਟਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਤਨਜ਼ੀਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਾਵੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿਊਟ ਤੇ ਬਟਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਾइंड ਹਾਰਟਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अच्छा जी। ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ, ਅਕਲ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਵਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਫਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਫਾ ਮੇਰਾ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾइंड ਹਾਰਟਡ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਲ ਸ਼ਾਮੀ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾइंड ਹਾਰਟਡ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾइंड ਹਾਰਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਮਰੱਬੀ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮੇਰੇ ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਐ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾइंड ਹਾਰਟਡ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇ 20 ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਵੈਲਕਮ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕਾइंड ਹਾਰਟਡ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ नहीं उन्हें गालियां नहीं निकाली सीगियां, उन्हें सिर्फ सवाल उठाए सी डिफरेंट जिस तरह उठाने ने आम तौर ते लोकी डिफरेंट हदीसां ते इस तरह करके। बाकी वो खुद ही आके दसेगा उन्हें की एग्जैक्टली ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੀ ਤੋਮਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੀਲ ਤੋਮਤ ਲਾਈ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੀਲ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਮਰੱਬੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੈਰਤ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਟਲੀ ਤੂੰ। कि स्वामी ने ऐसी गाल की थी ये तो पागल हो गया ना, मेरे ख्याल से खुद पागल हो गया उन्होंने। मैंने तब की गाला कटी यार ਐਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੋਮਤ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੋਮਤ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕੇ ਇਹ ਲੜ ਪਏ ਸੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਫਾ ਲਾ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਫਾ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਡਰਮ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਸਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਫੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੂਸਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਦਲਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਲਓ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੌਫ ਹੋ ਗਿਆ। आमिर रज़ी साहब टेंशन ना लिया करो, जाने दो। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? असल में ना आमिर साहब मसला ये है, वो उस वक्त जो बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि ये जो एतराज़ात कर रहे हैं ना काइंड हार्टेड, ये एतराज़ात के जवाब सरकारी मुसलमान दें, हम तो दे देंगे, अभी हम चुप बैठे हैं, लेकिन ये बीच में मिर्ज़ा साहब को भी लेके आ रहे हैं, पहले ये खुद जवाब देना, मिर्ज़ा साहब को तो बाद में लेके आए। लेकिन आपका मौजू अलग था, आई अंडरस्टैंड वो मूसा वाला मौजू, लेकिन वो ये अज्यूम कर रहे थे कि आप इससे पहले भी बैठे सुन रहे थे इसकी बातें। असल में ये हुआ मसला, वो इस चीज़ को एज्यूम करके बैठे हुए थे अकील साहब के आप सुन रहे थे। एनीवेज आप नहीं सुन रहे थे तो फिर नहीं यार, आमिर रज़ी साहब और मेरी आपस में थोड़ा बहुत सही है, ठीक है, 1 to 1 हमारी गुफ्तगू हो जाती है, मसला कोई नहीं। मैं हल्फन कहता हूँ मैंने इनकी गुफ्तगू नहीं सुनी। मैं जुम्मे की नमाज से निकला हूँ मस्जिद से, तो मैंने जब ओपन किया है तो मूसा बात कर रहा था, और ये सिर्फ इन्होंने 1-2 बार किया, यस नो किया है हल्का फुल्का, तो मुझे पता चला है कि वो इनको मुखातिब कर रहे, वरना मुझे नहीं पता था कि इनका मौजू या गुफ्तगू कहाँ से स्टार्ट हुई, ना मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है बिल्कुल भी। साहब अगर आप काइंड हार्टेड से कभी 1 to 1 करेंगे तो आप इसको क्या समझ के करेंगे? मतलब क्या इसका बैकग्राउंड क्या रखेंगे जहन में? ये तो बताता है कि हाँ भी काइंड हार्टेड साहब दूसरी साथ ही बैठे हुए हैं, थोड़े बारे से नहीं गल करता, लेकिन आप इसे क्या समझ के बात करेंगे? इसको किस तरह के दलाइल देंगे? किस तरह इसको सेटिस्फाई करेंगे? इसके सवालात का जवाब देख के, मतलब इसको अहमदी समझ के करेंगे या इसको जस्ट एक जिसको बिलीव नहीं होता किसी भी रिलीजन पे उस तरह करेंगे? जो नहीं, असल बात यह है कि एक हमारा वो बैकग्राउंड है जो हमारे साथ चिपका हुआ है, जिससे हम पीछा छुड़ा नहीं सकते। एक वो है जिससे हमने पीछा छुड़ा लिया। अगर तो हमने हर एक से पीछा छुड़ा लिया है, फिर हमें सबसे बराबरी के साथ बात करनी चाहिए ना। बराबरी यानी ये नहीं है कि सिर्फ इस्लाम को टारगेट करें, फिर आप मिर्ज़ा साहब पर भी सवाल करें, उनकी नबूवत पर भी सवाल करें। इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ऊपर कोई एतराज़ात या अशकालात या सवालात हैं, बिल्कुल हम उसके जवाब के पाबंद हैं, हम पे सवाल करें। लेकिन अगर आप वन साइडेड, जिस तरह ये कई मैंने देखे हैं ना एथीस्ट होते हैं, तो वो करते हैं सिर्फ इस्लाम को टारगेट, वो हिंदुओं के साथ नहीं जाके बात करते, क्रिश्चियंस को काउंटर नहीं करते, किसी और मज़हब को काउंटर नहीं करते, सिर्फ तो साफ समझा जाएगा कि वो एंटी इस्लाम है, वो मुल्हिद नहीं है बल्कि वो एंटी इस्लाम है। उनकी एक जो है ना मिशन उनका, या उनकी जो मंजिल है, गोल उनका, वो ये है कि इस्लाम को टारगेट करना सिर्फ। बाकी मज़हब, अगर वो सब मज़हब के साथ एक जैसी बात करते हैं और कभी इस्लाम के मतलब भी सवाल करते हैं तो ठीक है, फिर वो उनका हक है, उनकी फिर बैकग्राउंड कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई बैकग्राउंड पीछे चिपकी हुई है तो फिर ला मोहल्ला उसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता ना। इनके भाई मुरब्बी हैं, ये बता रहे थे एक दिन,
और इनका एक बैकग्राउंड है, मेरे घराना इनका जो और ना भाई मजहबी है, अभी उसी के घर आया हूँ, नहीं तभी तो नहीं बोल पा रहा, नहीं तो मार पड़ेगी मुझे। अभी अपने ये देख बच्चे बोल रहे हैं, उसी के घर आया हूँ। ये शुक्र वही करो मैं वही बाहर मैं नहीं कह रहा रहा हूँ ना, आपने एक दिन बताया था, मैं सुन रहा था कि आपके भाई जो हैं वो बड़े मतलब देते हैं आपको, दलीलें देते हैं। आपकी उम्र कितनी है काइंड डॉक्टर साहब? 30s में। तो मजहब के मतलब जानने का कब से ये फिक्र आपको लाहक हुआ? पहले यानी बचपन से आपको वालिदैन ने जबरदस्ती नहीं पकड़ के भेजा मजहब सीखने के लिए, ये सीखो ये सीखो ये सीखो? ना ये अपने वो मतलब काम शाम ये वो इस तरह दुनिया होती है, समझ नहीं आई। अपने उसमें बिजी थे, जिस तरह काम शाम वगैरह होते हैं ना उसमें बिजी। अच्छा, आपको मतलब नहीं है, बाकायदा तालीम नहीं दिलाई गई मजहबी? वो भाई को है, भाई को सारा इल्म है, मुझे नहीं। नहीं भाई को तो है, पर वो हर बात का जवाब भाई तो नहीं ना दे सकता। भी जो भी सवाल पूछे मेरा भाई लाहौर वाला आवेगा तो तेरा बंदोबस्त करेगा ऐसे तो नहीं ना होता। हर बंदे ने अपनी कब्र में खुद जाना है। अगर आप 30s में हैं तो आपको खुद इस पर गौर व फिक्र करना है। मज़हब के बारे में आपको गौर व फिक्र करना चाहिए, ज़रूर करें, लेकिन भारकैफ मज़हब के अंदर कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ईमान बिल गैब कहते हैं। ईमान बिल गैब मोमनों का भी कई मोमनों का इतना मजबूत नहीं होता। वो कहते चलो ठीक है। उधर ना गुजरात डिग्री साइंस कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर साहब थे, मैथमेटिक्स हमें पढ़ाते थे BSc में। तो वो कहते थे, एक आंख उनकी नहीं थी, काले चश्मे, काले वो शीशों वाली ऐनक लगाई होती। कहते थे मुसलमान नमाज पढ़ता है इस उम्मीद पे कि चलो भाई ठीक है जी, अल्लाह होया था भी ठीक है ना, अल्लाह ने मुलाकात ना भी होता भी ठीक है, नमाज पढ़ना कड़ा मुल्क। मतलब इस तकवे के साथ, इस ईमान के साथ या इस तवक्कल के साथ भी कई लोग मज़हब को फॉलो करते हैं कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। आपके खलीफा साहब से किसी ने, बच्चे ने पूछा हम अहमदी क्यों हैं, तो उन्होंने कहा हमने कुछ ना कुछ तो होना ही था ना, हम अहमदी हैं तो कुछ तो ऐसे फॉलो करते हैं। लेकिन दलील से फॉलो करना, उसको समझ के फॉलो करना अच्छी बात है ज़रूर, लेकिन जो ईमान बिल गैब है वो ज़ाहिरी बातों से, उस पर ईमान बिल गैब पर आपका दिल ज़्यादा मुतमिन होता है। अगर आपकी सामने वाली बातें दुरुस्त हैं, लॉजिकल हैं, मतलब कुरान में अगर बातें सही हैं, साहिब कुरान की बातें सही हैं और आपके दिल को छूती हैं कि ये कलाम अल्लाह की तरफ से है, ये बंदा सच्चा है, इनके दलाइल मुहकम है, तो जो क़यामत आपने अभी नहीं भी देखी, आपका उस पर ईमान मजबूत हो जाएगा कि हाँ इनकी अगर ये बातें सही हैं तो वो भी सही होंगी। फिर क़यामत के बारे में भी मानना होगा। ईमान बिल गैब यही है ना, जो हमने देखा नहीं है, फरिश्तों के बारे में, क़यामत के बारे में, या गुज़श्ता जो अंबिया गुजरे उनके बारे में, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर मजबूती आ जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम शहरियार साहब, वेलकम। खुरम साहब क्या हाल है? ठीक ठाक शहरियार। वल्द मोहम्मद फ़हीम, वल्द मोहम्मद मुस्तकीम साहब खैरियत है? खुरम वल्द अहमदी साहब क्या हाल है? मैं तुक्के मारन लगे खुरम, मैं तो शनाख्ती कार्ड लैके बैठा 20 सालों का। मेरा तो शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी लगी है। शनाख्ती कार्ड दे बन जांदे ने। हाँ, अमर नज़ीर दे नाम दा शनाख्ती कार्ड मैं बनवाया, नाम मेरा खुरम है। मैं ते आना वा अमर भाई मुकाओ हो रोला, मैं भी शनाख्ती कार्ड दी कापी लाना, तुसी भी लाओ ते व्हाट्सएप तुसी भी लाओ। हां ओ भाई तेरे नाल क्यों शनाख्ती कार्ड दी कॉपी लाइए? फोटो साडे कोल है, लगाओ जी लगाओ मेरी फोटो, मैं भी देखना चाहता हूँ। कल मैंने नई फोटोज व्हाट्सएप ਅਸੀਂ अपलोड की। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੀ ਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵਗੈਰੇ ਤੋਂ। यार बड़े नहीं, माशाल्लाह बच्चे मेरे इन्होंने बच्चे नहीं- भी पैदा हो रहे हैं माशाल्लाह बच्चे माशाल्लाह पैदा नहीं हो रहे, बच्चे इन्हां दे ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। माशाल्लाह। ਜੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪ 5-3 ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਾਇੰਡ ਟਿਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ। सर मेरी दाढ़ी है, मेरी दाढ़ी है, हाथ फेर के आपको आवाज सुनाते हैं करो आप दाढ़ी। कैमरा कैमरा ऑन करो, बिस्मिल्लाह करो। ये देखो माइक का पास करके मैं आपको दाढ़ी की आवाज सुनाता हूँ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ? ਪਲੇਟ ਦੀ- ਦੱਸੋ ਨਾ।
ये अबू बकर मीर रेजर दी बात सुना के तो दाढ़ी दिनों सुना था। हाँ अबू रेजर बकर चला के मीर ये जैसी वाकई दाढ़ी। मुझ पे किसी ने तोहमत लगी है, ये वाकई किसी ने ਚੱਲ तोहमत ਵਾਟਰ लगी है। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਵਿਖਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਦਾੜੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਹੈ। कैमरे पे मैंने एक पक्की एक टेप लगाई साइड का हुई है। गाल। कैमरे पे मैंने पक्की टेप लगाई हुई है, वो मैंने टेप पक्की पक्की लगाई हुई थी आप लोगों के लिए। अच्छा मैं ये पूछ रहा था, ये काइंड हार्टेड भाई आपके मुसलमान हो गए हुए हैं जाली वाले? भाई हम क्या मैं की करा यार, क्या चक्कर क्या हुआ है जो आप कौन इतने से वाले परेशान हैं? मुसलमान हैं उनसे ये जो जाली मुसलमान होते हैं, जो हजरत ईसा को आसमान पे जिंदा मानते हैं और वापस भी लाना है ये बात इससे खड़काओ बंदों को, इससे लोगों को मुल्क बनाओ कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे मानते हैं, इनके पीछे जाओगे तो तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे मानना पड़ेगा। नहीं हमें क्या जरूरत है, आपका तो हर कीदा ही गप और झूठ है। अभी आप आपका तो इबादत का ठीक है ना कि मजमून खोलेंगे तो आपका वो तो भी ठीक गप है ना कि निकलेगी। मिर्जा साहब के दादा गोल में अमीर मोहम्मद खान को ना गोली लगती थी ना गोला तोप का लगता था। 1000 बंदा फायरिंग कर रहा है तो वो अकेले छलावे की तरह निकल जाते थे बच के। आपका यार, कीदा तो ये आपके तो- मिर्जा साहब की तो बातें सारी सच्ची हैं। ये पता नहीं कहाँ से आपने ऐसे अकीदे सुन लिए, हमने तो आज तक नहीं सुने हुए। फिर आप हज़ाला कहते हैं हमने कि यार लिखा हुआ है, आपने लगाऊं सफा? आपने अपनी लगाऊं किताबें खुद नहीं पढ़ी, चेक करो यार। गोल मोहम्मद मुझे तो खान हंसा गोल आता है मोहम्मद आप खान लोगों की मिर्जा बातों साहब के दादाजी थे, उनके बारे में मिर्जा साहब ने लिखा है कि 1000 बंदे पर वो अकेले फतह पा लेते थे, ना उनको गोली लगती थी बंदूक की ना तोप का गोला लगता था। पे। अच्छा तो फिर मिर्जा कोई बंदा साहब उनको को काबू पत्थर कर क्यों नहीं लग जाता था? मिर्जा साहब पे उसकी जब वजह है पथराव वो हुआ था तो उन्हें पत्थर क्यों लग गए थे? हाँ ये सवाल तो मिर्जा साहब को करना चाहिए ना भाई। अच्छा आमिर यार भाई, ये आमिर साहब को ना गप्पे बड़ी पसंद है, वाटर साहब, हर झूठी बात पे मजेदार यकीन बात है। कर लेते हैं। वाटर जी? बड़ी मजेदार बात है, सुनना जरा। अमर भाई बचपन में ना जब छोटे होते थे तो अक्सर ना वो आपस में जब बच्चे बैठे होते थे ना, तो वो एक बच्चे ने कहा, उसने कहा मेरे बाप की इतनी जमीनें हैं ना, इतनी जमीनें हैं कि वो ट्रेन चलती है तो 4 साढ़े 4 घंटे वो चलती रहती है, जमीनें खत्म नहीं होती, इतनी जमीनें हैं। तो दूसरे बच्चे ने कहा, उसने कहा मेरे जो दादा है ना उसके पास इतनी बड़ी डांग थी ना कि वो नीचे खड़ा होकर ऐसे आसमान पे मारता था तो बारिश होती थी। तो वो दूसरा बच्चा जो पहले है ना वो कहने लगा, तो इतनी बड़ी डांग तेरा दादा रखता क्या है? मैंने कहा, तेरे प्यो दी जमीन है तो बस यार ऐसे ही है। हमने ये बातें छोटे होते भी की है, मिर्जा साहब ने बड़े होके ये बातें की है। बस ऐसे ही है अबू बकर मीर। बात दरअसल ये है कि आप सोने की कान में ना मिट्टी ढूंढने गए थे, हम सोने की कान में सोना ढूंढने गए थे। राजू राकेट साहब मैंने आपको हवाला पेश किया कि नहीं ज़ाला हाम का, जिसमें मिर्जा साहब ने लिखा है कि मेरा दादा जो है उनको ना गोली लगती थी ना गोला लगता था, 1000 बंदे पर वो अकेले तो फतह पा ये लेते थे। राजू रॉकेट तो वैसे ही 2 नंबर आदमी है, इसको हवाला देने का और ना देने का कोई फायदा नहीं है। ये 2 नंबर है, काइंड हार्टेड 2 नंबर है, ओपन आइज 3 नंबर है। ये सारे काइंड हार्टेड तो बड़ा माल अच्छा इकट्ठा किया बंदा हुआ था। है। ये काइंड हार्टेड तो बहुत अच्छा बंदा है। ये इसके बारे में मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, ये सरकारी अहमदी मुसलमान हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह, की कहने रंगे ये क्या चक्कर हो रहा है जो आज से सारे मुसलमानों ने हमला ये- किया हुआ है आप पे? वाटर साहब आपके अंदर भी मैं पहले कहूँ अस्सलाम वालेकुम, काइंड हार्टेड साहब को आप ये वालेकुम कह सकते हैं कि ये भी सरकारी अहमदी हो गया, पूरी तरह अहमदी नहीं है, ये सरकारी अहमदी है। अच्छा ऐसे कह सरकारी कोई बात नहीं है यार, जो इसकी दिल करे। बात दरअसल ये है कि आप लोगों ने इस्लाम को ऐसा मैं बना दिया है, आप मेरी बात को समझे नहीं है, फैंसीफुल रिलीजन, आप मेरी बात को जिसमें समझे नहीं है। फैंटेसी बना दी है। मैंने कहा आप मेरी बात को समझे नहीं है। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था आपको कि आपके अंदर भी 2 किस्म की कैटेगरी है ना। एक वो लोग हैं जो गालियां देते हैं, एक वो लोग अच्छा। हैं जो काइंड हार्टेड की तरह के होते हैं। तो जो काइंड हार्टेड वाले लोग हैं उनको सरकारी अहमदी कह लेना, दूसरों को ऑफिशियल अहमदी कह लें। अच्छा सरकारी अहमदी क्या? ये तो नहीं, ये नहीं सरकारी, सरकारी तो हम है, अच्छा हम सरकारी अहमदी। ये तो बड़े माशाल्लाह मतलब सोबर किस्म के, खामोश तबाह और बड़े अच्छे आदमी है। चलो डॉक्टर साहब एक सवाल पूछ लो आपसे। ट्रू मुस्लिम में सवाल पूछना भाई, ट्रू मुस्लिम में सवाल पूछना, म्यूट गोलियां करो। खाने की तो हमने कसम खाई है। डॉक्टर साहब सुन भी ले, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
पहले आप मेरे से सलाम दुआ लें। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आप पूछें जी सवाल। अच्छा, सवाल ये है कि अभी वो आप बात कर रहे थे ना अकीदे की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं और कब आएंगे वगैरह वगैरह। हाँ तो जी, हाँ मैंने जी, सुना है कि मिर्ज़ा साहब की एज 52 साल तक, मिर्ज़ा साहब का भी यही अकीदा था हाँ कि जी, ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा मौजूद हैं और वापस तशरीफ़ लाएंगे। हाँ जी। तो फिर 52 साल के बाद मिर्ज़ा साहब ने ये जो अकीदा चेंज किया, ये अच्छा जी। किसके कहने पे किया, क्यों किया, इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी, क्या राज था? इसके पीछे हिकमत फिर अमली और उन्होंने राज ये इतना अकीदा आसान है बदल कि दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को वफात दे दी और कहा कि वो तो फौत हो गए हैं। तो बिल्कुल पहले सही, तो मिर्ज़ा साहब भी यही अकीदा रखते थे ना कि वो जिंदा है, हयात हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये भी दो राय होगी ना मिर्ज़ा साहब की, मतलब है इसमें भी तनाकुस पाया जा रहा है। इसको आप तनाकस कौन नहीं सी कहते, मिर्ज़ा साहब की इसको बात को तरक्की मान कहते लें, हैं। पहली वाली को या बाद वाली को? जी भाईजान, बात दरअसल ये है, इसको तनाकस नहीं कहते, इसे तरक्की कहते हैं। ठीक है। अच्छा। तो बात ये है कि जैसे आपने सोचना आजकल शुरू किया हुआ है ना, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको रूहानी तरक्की देगा, और जब रूहानी तरक्की देगा तो आप अहमदियत की तरफ ही आएंगे। तो और अगर मैंने क्या आपको सोचना रूहानी, शुरू किया ये बता दे थोड़ा सा। हाँ जी, जब आप दीन की सच्चाई सोचनी शुरू करते हैं ना, तो फिर आप मौलवियों के चुंगल से निकलते हैं। ये जो जाली इस्लाम की तारीफें और वो तफसीरें करके बैठे होते हैं ना, फिर आप उनसे जान छुड़ाते हैं और हक की तरफ आते हैं, क्योंकि ये बात मजहब जो है आपकी ना वो एक दुरुस्त है, मजाक लेकिन नहीं। मैं किसी मौलवी की पैरवी नहीं करता, मैं सिर्फ कुरान और हदीस को मानता हूँ। कोई भी मौलवी मुझे कुरान और हदीस से हट के कोई बात बताएगा अपनी बात अपनी तरफ से, तो जी, वल्लाह मैं हदीस की बात को अपने सीने से लगा लूंगा, मौलवी की बात को पटक के दीवार के साथ मारूंगा। मैं बिल्कुल किसी सही है। मौलवी को नहीं मानता। तो फिर अल्लाह ताला ने जब उनको हिदायत दी और उनको कशफी तौर पर और इल्हामी तौर पर अल्लाह ताला ने बताया ना कि ईसा इब्ने मरियम फौत हो चुके हैं और तुम उनके रंग में रंगीन होकर आए हो, तो उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये तो मैं तो सारी जिंदगी उनको जिंदा समझता रहा हूँ और आसमान पे जिंदा समझता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने जब कुरान पाक पढ़ा तो उन्होंने देखा कि वहां तो साफ साफ लफ्ज लिखे हुए हैं तवफ़ैतनी और मतवफ़ी का। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारा वक्त मौलाना हजरात और जो नाम निहाद आलिम, असली आलिम नहीं, नाम निहाद आलिम जो हैं, जो कहते हैं सीना ब सीना हमारे तक तफसीरें पहुंची हैं, लिखा हुआ है कुरान पाक में, उन्होंने क्या तो लिखा हुआ है? उन्होंने तो हमसे झूठा मतलब बताया। जब लफज ही एक वफात मिनट का है, वाटर और ठहर जो शहरियार यार साहब, बंदे नाल गल करन दियो, बाद नहीं में जो बात आपने खुरम यार दलील दरमियान में समझ बात लेना, नहीं आप सुन रहे काटते। हैं, मैंने फिर थले हम ला बात छोड़ो नहीं जो मैं काटते। दलील समझ नहीं, आप बात कर रहे यार हैं, मुझे देखो, समझ नहीं नीचे उतारने की धमकियां यार, आज मुझे नीचे उतारने की धमकियां नहीं, मिलेंगी। बादशाह मैं साहब, अपने आप को कह रहा हूँ। आप जो कुरान का हवाला दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका हवाला दे देना, कुरान में क्या लिखा हाँ है, जी, किस आयत आपने में पढ़नी लिखा है है, किस सूरत सूरह में मायदा, लिखा है। सूरत मायदा आयत बोले भाई नंबर सूरत मायदा 117, और फिर आपने सूरह आले इमरान की आयत में देखनी है जहाँ पे लिखा हुआ है इन्नी एक मतवफ़ी एक का। करके खोल लो, एक एक करके खोल लो ना। तो ट्रू मुस्लिम साहब, जब आपने वो पढ़ी दोबारा, तो आपने देखा आपकी तो दुनिया ही बदल चुकी हुई है। तो आपने देखा कि मुस्लिम जिस खोल शख्स यार को हम सूरत आसमान मायदा। पर जिंदा मान रहे थे, उसको तो अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में कह रहा है कि वो फौत हो गया हुआ है। तो आपने ये बात फिर कोई राज नहीं रखी और खुल के लोगों के सामने और मुसलमानों के सामने रखी, भाई हजरत ईसा तो फौत हो चुके हैं कुरान पाक के मुताबिक। वो आयत खोल यार, ट्रू मुस्लिम आयत खोल। और वाटर साहब, एक सवाल मेरा भी है छोटा सा। ठहर जो यार, तुम्हारे सवाल का भी जवाब देते हैं, ट्रू मुस्लिम साहब से रिस्पॉन्स लेने इसी दें। से, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। ठहर जो, एक मिनट सांस तो लो, मेरी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, मेरी बात नहीं मुकम्मल हुई इल्हाम हुआ था, सुने तो सही यार, ये क्या बंदे हैं यार, दरमियान में ही बोल पड़ते इल्हाम हैं। हुआ था अल्लाह वाल कुरान, और उसका मानी भी मिर्जा साहब ने कहा हुआ है कि तुझे कुरान का जो इल्म है ना, समंदर की तरह ठाठे मारता हुआ इल्म अता किया गया है। अब सवाल ये है कि अगर मिर्जा साहब को इल्हामन ये बात बताई गई कि कुरान का ठाठे मारता इल्म तुझे मारफ जो है वो अता कर दिए गए हैं, तो उसके बाद मिर्जा साहब 52 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा समझते रहे, तो क्या ये इल्हाम शैतानी था? अच्छा, ट्रू मुस्लिम वाटर साहब, सूरह मायदा आयत कितनी दसी है? आयत नंबर 117 खोलें जनाब। 117 विद उर्दू ट्रांसलेशन। ये सब जी तो सर। पहले खुली है जी जनाब दावत इस्लामी वाले वेबसाइट।
सर आप कुरान.com खोल लें, इंटरनेशनल खोले ना तर्जुमे, कुरान.com खोले। कोई बात नहीं। ये आ गया जी 117 जी जी पढ़ के सुना पहले सूरत। नहीं, आप आयत सिर्फ आयत नंबर 117 पढ़ के ले। नहीं, पहले आयत अरबी पढ़ा फिर तर्जुमा पढ़ा। हाँ जी, जैसे आपको आसानी होती है, जैसे हुसैनी साहब अरबी तर्जुमा खुद कर लेते हैं। जी जी पढ़िए। प्यारे भाई, ये तो कुछ और आयतें पढ़ रहे हैं आप, ये वो तो नहीं है। नहीं, वो असल में ना ये 117 आयत है ना, तो ये पूरी सूरत का तर्जुमा लिखा हुआ है। चलो मैं इसका ना आपको तर्जुमा पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि अरबी तो वैसे भी अब में से अक्सर बंदों को नहीं आती ना, उसका तर्जुमा नहीं कर पाएंगे। हाँ अगर आप कहते हैं तो 117 में ना उसका तर्जुमा, उसकी अरबी भी आपको सुना सकता हूँ। जी जी, डायरेक्ट तर्जुमे पे आ जाए। मैंने जैसे आप तो बेहतर समझे भाई। उनसे वही कहा था जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, और मैं उन पर मतला रहा जब तक उनमें रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निगाह रखता था और तू हर शे पर गवाह है। जी, तूने उनको उठा लिया, इसमें तो यही बात नजर आ रही है, उठा लिया। तो वफात का मतलब उठा लिया कब होता है? मतलब माता वफात है, ये नहीं, इसका क्या मतलब है? हाँ, जब तूने मुझे वफात दी, जब तूने मुझे वफात दी, उठा लिया वाला का मतलब ये दूसरी आयत में से लेते हैं, वराफियों का लैया वाली में से। अच्छा, इस उठा लिया से क्या मुराद है? इस उठा लिया से मुराद है कि 2 नंबरी की हुई है तर्जुमा करने वाले ने। उठा लिया की जगह क्या आना चाहिए था? मुतवफ़ी का मतलब जो होता है ना, तवफ़ा इतनी के तूने मुझे वफात दी। अच्छा, तो यहाँ पे ये लोग जो है ना, ये झूठा तर्जुमा अपनी तरफ से करके ना अपने गलत अकायद को ना ताकत देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तवफ़ी का क्या मानी होता है? फौत करना। तूने मुझे फौत किया। फौत करना क्या होता है? फौत करना क्या होता है? फौत करना क्या होता है? फौत हमारा उर्दू का लफ्ज़ नहीं है। जैसे हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला ने फौत किया ना अमर साहब, उसी तरह हजरत ईसा भी फौत मर हुए। जाना। जैसे रसूल पाक का विसाल हुआ ना, उसी तरह ही। अच्छा, तवफ़ी का मानी होता है मौत आ जाना। जी जी, मर जाना, जी यही कह रहे हैं ना? हाँ जी। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, पढ़ना जरा, तर्जुमा पढ़ना जरा दोबारा। क्या नाम है आपका? ट्रू मुस्लिम साहब, जब आप कुरान.com खोलेंगे ना, तो उस पे 8-8, 10-10 तर्जुमा करने वाले लोगों के तर्जुमे हैं। अच्छा, और बहुत सारे लोगों ने खुल के तर्जुमा किया हुआ है फौत होने का, खुल के तर्जुमा किया हुआ है वहाँ पे फौत का। मरजाइयों का तर्जुमा पढ़ दो यार, छोड़ दो। जो मरजाइयों का तर्जुमा नहीं, आपके अपने मुसलमानों ने भी फौत होने का ही तर्जुमा किया यार, है। अगर फतेह मोहम्मद जलंधरी ने भी किया। मुसलमान जाने। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसका तर्जुमा बताएं दोबारा जरा मुझे।
मरदाइयों वाला तर्जमा बता दे शायरी al-islam.org इनकी जो वेबसाइट के ऊपर कुरान का तर्जमा है इस आयत का वो पढ़ाऊँ? जिधर से मर्जी पढ़ दे, कोई उधर से पढ़ दे। सूरह माइदा थी आयत एक 117 लो ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ और याद करो जब ईसा इब्न मरियम से कहेगा कि क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह की सिवाय और मबूद बना लो, और वो कहेगा पाक है तो मुझसे हो नहीं सकता कि ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक ना हो। अगर मैंने वो ये बात कब की बात हो रही है? ये कब की बात हो रही है? अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੀ 117 ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਸੂਰਹ ਮਾਇਦਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। आप 118 पढ़े ना हमारे नहीं, 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 जी, नंबर एक- बिस्मिल्लाह का नंबर होता है, एक अच्छा, नंबर 118 बिस्मिल्लाह का होता है। एक नंबर आप 118 पढ़ना। से आ गया, ਇਹਨਾਂ ਦਾ हाँ, पुराना बिल्कुल। हो रहा सादा हो रहा। अच्छा हाँ आ गया। मैंने कुरान ही हो रहे जी, बिस्मिल्लाह इसके लिखी है सिवा साढ़े कुछ नहीं कुरान। कहा जो तूने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है, और मैं उन पर निगरान था जब तक मैं उनमें रहा, बस जब तूने मुझे वफात दे दी। कहानी मुक्की। बस ये एक कब की बात हो रही है? कौन कह रहा है और कब कह रहा है? ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना। कब कह रहे हैं? ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਤ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ईसा अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ जी भाई, बस तूने मुझे वफात दी तो एक किस लिए कह रहे हैं किनों कह रहे हैं आसमाना मतलब फौत होने तो पहले कह रहे हैं बाद कह रहे हैं जिसलिए उन्होंने वफात दे दी थी यही तो वो किस तरह कह सकते थे तूने मुझे वफात दे दी। भाई वफात शुदा लोगों की रूहें तो अल्लाह ताला के पास ही होती है ना जी, तो वो जब उससे सवाल करेंगे अल्लाह ताला तो वो जवाब देंगे, चाहे वो क्या जवाब देंगे? जब क्या जवाब जब देंगे तूने मुझे वापस? वफात दे दी तो तू ही उनका निगहबान था। इसका क्या मतलब है? कि जब तूने मुझे अल्लाह ताला उन पर से सवाल पूछेंगे ना कि क्या तुमने लोगों को कहा कि मुझे और मेरी माँ को जो है वो समझ लो, रब समझ लो, ठीक है ना। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा बजुज उसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था, ये कि खुदा की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सब का परवरदिगार है, और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया और वफात दी तो तू उनका निगरान था और तू हर चीज से खबरदार है। तो बस ठीक है, जब वो दुनिया से चले गए, ये ईसा खत्म हो गई। अलैहिस्सलाम सच बोल रहे हैं? आपके ईसा अलैहिस्सलाम सच के अलावा कुछ बोलते ही नहीं थे। सच बोलते थे। तो इसका क्या मतलब है कि क़यामत के दिन वो क्या कहेंगे कि या अल्लाह जब तूने मुझे वफात दे दी तो हाँ फिर जी। मुझे कोई पता नहीं पीछे क्या हुआ, यही कह रहे हैं? बिल्कुल यही कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे कौम जो है वो गुमराह हो गई है। जी। ऐसा ही है ना? हाँ ऐसे ही है। लेकिन मिर्जा साहब कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को बता दिया गया है कि आपकी कौम पीछे से गुमराह हो गई है। चलो ये एक और मौजू बन जाता है, हम तो इस वक्त कुरान पाक की बात दूसरा कौन सा मौजूद? इसी की बात हम भी कर रहे हैं कि कुरान पाक में जो बात लिखी हुई है ये वाली माननी है कि मिर्जा साहब की माननी है? कुरान पाक की। तो कुरान पाक की मानी तो मिर्जा साहब को झूठा माने फिर? मिर्जा साहब तो क्यों कहते झूठा हैं कि माने? ईसा अलैहिस्सलाम को बता दिया गया है कि तेरी कौम पीछे से गुमराह हो गई है। अच्छा बता दिया गया हो फिर क्या बात है, बस वो अगर बता बहुत दिया हो है गई। फिर सुन तो ले। ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन झूठ अगर- बोलेंगे?
आप ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भाई झूठ ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं, लफ्ज खान में साहब- एक मिनट है अगर मिर्जा साहब सच्चे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को बता दिया गया है, तो फिर कैसे हो सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह को ये बात कहें जो आप पढ़ के सुना रहे हैं? जी मैं तो कहीं से पढ़ के सुना रहा हूँ, वो तो कुरान पाक है और कुरान पाक में अगर वो लिखा हुआ है कुरान फौत हो पाक गए है, हैं। अगर उस पर ईमान है, अगर वो सच्चा है, तो फिर मिर्जा साहब झूठे हैं। मिर्जा साहब कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को बता दिया गया है कि आपकी कौम पीछे से गुमराह हो गई। ये तो अब आप मजबूर कुरान ना में ना आयत बदलें। आ गई है तो बतला ही दिया गया ना, तो आयत आई है ना। हज़रत बतला दिया गया है? साहब, बतला दिया गया ईसा अलैहिस्सलाम को, जब कुरान में आयत आ गई तो उन तक इत्तला पहुंच गई ना, अल्लाह ने ये आयत पहुंच गई है, नाज़िल की ईसा अलैहिस्सलाम तक इतला पहुंच गई है, तो क़यामत वाले दिन फिर वो क्यों कहेंगे कि या अल्लाह मुझे तो नहीं पता ये पीछे से गुमराह हो यही गए। डायलेक्ट क़यामत वाला पहले ही उन पर नाज़िल, मतलब अल्लाह ने जब कुरान में नाज़िल कर दिया है तो उन तक इत्तला पहुंच गई ना। किसने चलो कहा ठीक पहुंच है। गई है? अगर पहुंच गई है, अगर पहुंच गई कुरान है कह रहा तो फिर है, क्या- इसी आयत में कुरान भाई ही कह अगर रहा पहुंच है, गई है तो हज़रत फिर ओ भाई साहब, अगर पहुंच गई है, दाऊद साहब क्या आपका नाम है, वदूद साहब, अगर पहुंच गई है तो क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ है? जब तूने मुझे खुरम भाई- वफात दे दी, मुझे क्या पता पीछे क्या हुआ है? अच्छा खुरम भाई ये वाली बात बताएं ना कि हजरत ईसा जो आप लोगों के मुताबिक दोबारा आएंगे और सब लोग उनके हाथ में मुसलमान हो वो जाएंगे। बाद में बात फिर- करेंगे ना, वो पहले अच्छा, पहले वो जो आप- बाद में मेरी- बात मेरी करें। बात सुन, हमारा तो आपने बता ये दिया बात है कि ना, हमारा तो अकीदा वो- है फैंटेसी वाला, हमारी तो फैंटेसी है, आपके पास तो बिल्कुल हक है क्या ना? fantasy। अपनी बिल्कुल। हकीकत जो आपने हाँ। अपनी सुन लेना, जो आपने अपनी हकीकत पेश की है वो अब फंस गई है, क्योंकि ऐसे मिर्जा ही साहब फंस गई कहते है। हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, सुन तो लो ना ऐसे ही भाई। फंस गई। मिर्जा साहब कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को बता दिया गया है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे नहीं पता मेरे पीछे क्या हुआ है, मैं तो जब तक तू वहां रहा तो निगरान रहा, जब तूने उठा लिया या वफात दे दी, हाँ। फिर मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मिर्जा साहब हाँ की जी। माननी है कि कुरान की माननी है? जनाब आपको क्या आसान लगता है? आप तो मिर्जा साहब को मानते नहीं, तो कुरान मैं पाक तो को कहता हूँ माने मिर्जा जिस पर साहब हम को दोनों कज़ाब, इकट्ठे। मैं तो कहता हूँ मिर्जा साहब को कज़ाब कहें और कुरान पर ईमान लें। भाई कुरान मान लें आप ना माने ना हाँ? मिर्जा साहब को, आप कुरान नहीं। पाक को मान लें। एक बात वो कर रहे हैं, एक कुरान आप कर रहा है। लफ्ज का मतलब ही बदल बात देते से- हैं। तवफ़ैतनी का देखिए लफ्ज ना। का मतलब ही आपने पूरा ले लेना कर दिया हुआ है और उसके हाँ ठीक वफात है, भी निकाल हमने दी गलत हुई है। कर दिया, हमने गलत कर दिया, हाँ। सही मिर्जा साहब ने किया ना, मिर्जा साहब ने सही माने किया है कि जब उनको मौत दे दी गई तो फिर उनको नहीं पता पीछे क्या हुआ है। ठीक सर है, आपके उलमा ने लेकिन- कुरान.com पे लिखा हुआ है, 3-4 उलमा ने यार उलमा तवफ़ैतनी को- का मतलब उलमा को फौत कर बाद में दिया लिखा हुआ है। देख लेंगे, वो देख लेंगे बाद में, मैं पे तो करना मुस्लिम भाई पहले आपने मिर्जा साहब का तो कुरान.com फैसला से हो भी जाए, चेक कर लेना। पहले मिर्जा साहब का तो फैसला कर लें। आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को कोई पता नहीं कि पीछे क्या हुआ, कुरान कहता है पीछे कोई पता नहीं उनको क्या हुआ, मिर्जा साहब कहते हैं उनको पता है, उनको बता दिया गया पीछे ये पूज रहे हैं आपको, आपकी परस्तिश कर रहे हैं। चलो यार आप बता भी माने दिया, कि फिर मिर्जा उससे साहब- क्या फर्क पड़ता है? हजरत ईसा का स्टेटस तो मौत वाला ही रहा ना, नहीं, चाहे अगर उन्हें अगर बता ये दिया दोनों चाहे बातें उन्हें ना मेरी सुन बताया, लें, मेरी बात, दुनिया से तो अगर मौत ये हो गई दोनों ना बातें उनकी। माने ना, शायर यार साहब एक मिनट रुको, अगर ये दोनों बातें माने ना तो अल्लाह की पनाह चाहते हैं हम, ये दोनों बातें मानकर ईसा अलैहिस्सलाम को फिर सच्चा नहीं बंदा कह सकता कि वो अल्लाह ताला को ये सही कह रहे हैं बात कि मुझे नहीं पता, जबकि अल्लाह ताला मिर्जा से साहब कोई कह रहे हैं झूठ उनको नहीं पता बोल है, सकता, अल्लाह से कोई झूठ या नहीं फिर बोल मिर्जा सकता। अल्लाह ने वो सच बोल रहे हैं तो फिर मिर्जा साहब झूठ बोल रहे हैं ना। तो यार मुझे फिर ये मिर्जा वाली साहब बात झूठ बोल रहे हैं बताएं, मिर्जा साहब को तो आप मानते ही नहीं, आपको मिर्जा साहब की क्या फिक्र है? मिर्जा साहब की फिक्र तो हमें होनी चाहिए। यार आप तो कुरान मानते हैं पाक कर रहे हैं। ना, आप तो मानते हैं ना, मैं नहीं मानता, मैं उनको मानता हूँ कज़ाब, आप उनको सच्चा मानते हैं ना, तो आप अपनी आंखों से देख चलो। लें कि क्या ये बात लो सच्ची जी, है कि फार्मूले झूठी पे है। आ गए। आपके पास एक ही फार्मूला मेरा है कि मतलब मैं है मिर्जा कि- साहब को गालियां निकालनी शुरू कर दूंगा और ये डर के भाग गाली जाएगा। कोई नहीं, गाली कोई नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम की वही वाली भाई पाक जुबान सच्चे से बंदे निकलने को वाली कज़ाब बात की गाली जो होती है ना, वही कायनात की सबसे बड़ी गाली होती है। हमारे सच्चे बंदे को महबूब आपने नबी झूठा कह दिया, की वो रो सुने, पड़ेगा। शहरियार साहब, शहरियार मेरी बात सुन, हमारे महबूब खुरम भाई। नबी की वही वाली पाक जुबान से निकले हुए अल्फाज को गाली ना कहीं, ये गाली नहीं है। कज़ाब और दज्जाल क्या? हमारे नबी की वही वाली पाक खुरम जुबान भाई से निकले आप अल्फाज। नबी पाक के पीछे छुपा मत करीबन- करें। कज़ाब और दजाल ऐसे होते हैं करीबन जैसे मुसलमान था। सुन तो लेना,
करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, ये नबी पाक के अल्फाज है ना, इसको गाली तो ना कहें भाईजान। तो खुरम भाई आप मुझे ये बताएं कि मुसलमा कज़ाब के बाद आपने ये नहीं देखा कि किसी सच्चे बंदे ने भी कायनात में कभी आना है? नहीं, कोई किसी ने नहीं सच्चे ने आना, कोई नहीं बताया किसी सच्चे बंदे ने आना ही नहीं, यानी कि मुसलमानों में सच्चा बंदा पैदा ही नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नहीं पैदा हो सकता कोई इस तरह का जो नबूवत का दावा करे वो सच्चा नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी के अल्फाज आगे ये हैं, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, सारे खुरम भाई, कहेंगे, उनको सबको ज़ोम है कि वो नबी है। खुरम भाई आपके ये जो है वो हजरत बात। ईसा आएंगे ना, जो आपके ऐसा कोई अकीदे के नहीं पैदा हो मुताबिक आएंगे, हाँ, तो वो वो पैदा भी थोड़ी होंगे। हूबहू आप मिर्जा तो साहब की किताबों से ही दलाइल लेंगे। आप यही कह रहे हैं ना कि वो आकर पैदा होकर कोई बंदा नहीं कर सकता दावा, मैंने कहा नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया वो कज़ाब। अच्छा बहरहाल वो एक नया मौजू हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब कुरान और कहता फंस है गए आप। कि इस नहीं, मैं चाहता नहीं ना वो बार बार कज़ाब कहूँ तो आपको तकलीफ होगी, आप उनको मानते हैं, तो मैं कहना नहीं चाहता, मैंने सिर्फ एक बात दोहराई है। आके हजरत साहब वो हजरत ईसा आके कुरान मजीद की तिलावत किया करेंगे या नहीं? वदूद साहब एक मिनट ठहर जो, वदूद साहब ਤੁਹਾਡੀ आवाज भी थोड़ी आज ਤੁਸੀਂ म्यूट एक मिनट रखो, शहरियार साहब ने गल कर, शहरियार साहब देखिए, डेविड साहब ये जो है कुरान ना, कहता है, पाई कहानी ते कहानी बात जोड़ी तो करने जाएगा दो। पर सच नहीं मानेगा। बात तो करना देना शहरियार साहब, उनको छोड़ करें दें, सर, करें। उनके पीछे ना छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान का आपने तर्जमा जो किया वो मैंने मान लिया, आपके मुताबिक कुरान में ये लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जब तूने मुझे वफात दे दी तो जी फिर भाई, मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ है। बिल्कुल मिर्जा साहब सही कहते भाई। हैं उनको पता है, मिर्जा साहब कहते हैं उनको पता है, उनको पता है कि कौम गुमराह हो चुकी है। अच्छा, फिर अब वो आके उसको अपनी कौम को खुद ठीक कर सकते हैं? भाई आके कर सकते या नहीं कर सकते, ईसा अलैहिस्सलाम की बात को सच्चा माने या मिर्जा साहब की बात को सच्चा माने, ये बता दें। मिर्जा आप साहब ऐसा सच करें। बोल रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का ये मुकालमा सच्चा है अल्लाह के हुजूर। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अब गौर से सुने। आप सारों की बात को छोड़ दें, आप जो अल्लाह ताला सबसे ताकतवर ज़ात है, जो हमेशा से जिंदा है, और कुरान पाक जो उसने किताब दी है जो हमेशा रहेगी क़यामत तक, आप उस किताब पर, अल्लाह के कलाम पर वापस आ जाएं। अगर उस कलाम पर वापस आ जाएं तो फिर मिर्जा साहब को झूठा कह देना कि वो झूठ बोला उन्होंने कि ईसा अलैहिस्सलाम को बता दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को कोई पता नहीं पीछे क्या हुआ। ये सही है बात? अगर आप मिर्जा साहब को झूठा कहेंगे ना, तो आप फिर कायनात में किसी को भी झूठा कह सकते हैं। आप सिर्फ कुरान पाक पर रहें, तो अल्लाह का अपना ये कलाम कोई दलील है? ये कोई बात है करने वाली? जो कोई झूठा कह इंसान रहे हैं, जो खुली बंदा सच्चाई या को कह रहे हैं कि वो देखकर, सच कह रहा है, फिर उसको सच्चा कह लें। मेरी बात सुने ना, उसको सच्चा कह लें, ईसा अलैहिस्सलाम की इस बात को ना फिर सच्चा कहें, दोनों को तो सच्चा ना कहें। एक कुरान वक्त पाक में